Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, that is current electricity. Current electricity पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमने पहले क्या पढ़ा. In previous classes we have studied electrostatistics. In this we have studied about the charges at rest. But in most of the practical applications of electricity involve charges in motion. For example, an electric bulb glows when charge flows through it. An electric fan rotates when charge is made to pass through its coil. समझ ही रहे हैं. और when an electric bulb glows, it means some charge is in motion. So in many practical applications we always see the flow of charge. The flowing of charges are said to constitute electric current, which we have studied in class 10th. The flowing of charges are said to constitute electric current. So in this chapter we are going to study the flow of charges. Alright, so the definition is the branch of physics which deals with the study of charges in motion is called current electricity. See, we will study the electric current are of two types. First one is DC, that is direct current, and second one is AC, that is alternating current. Most of the practical devices use alternating current, where charges flow back and forth through conductors. What is this back and forth? You will study in more detail about this alternating current in our next chapter, that is alternating current. But in this we are going to study only the motion of charges. So in this branch we usually study how charge moves and how charge which type of charges move in which type of material, that is current carriers. What is current carrier? So current carriers are charged entities whose flow in a definite direction constitutes the electric current. Alright, so write the definition. The charged entities whose flow in a definite direction constitutes the electric current are called current carriers. There are so many examples of current carriers. We will study it for individual type of materials, that is in solids, अच्छा चार्ज मोशन की हम बात करते हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट गुड कंडक्टर्स ओनली इन सॉलिड्स. देयर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट गुड कंडक्टर्स. विच आर गुड कंडक्टर्स? You have studied in class 10 that in good conductors electron moves, but here you will study that it is actually valence electrons that moves. So the current carriers are, you must have heard about valence electrons in chemistry. Current carriers are the valence electrons, means the electrons at the outer shell of any atom which is free to move or loosely bound to the nucleus. Second is another type of materials, that is semiconductors. Semiconductors, you have heard it in diodes, semiconductor materials like transistors, or even that ICs
in these type of materials, which is for example silicon and germanium, very common semiconductor materials. In this type of materials, current carriers are both, means current carriers are negatively charged electrons. Negatively, current carrier simply means the charge, the particle which moves, or the material which carries current. Here we will study about force. It is not actually the particle which moves, but it is actually the vacancy which transferred. Negatively charged electrons and positively charged holes. पॉजिटिवली चार्ज होल्स कोई ऐसा कोई नया टाइप का पार्टिकल नहीं है. ये एटम में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन की जगह खाली रह जाती है, तो बगल वाले एटम से उसके दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के उस जगह को भरता है और ठीक पीछे वाले में फिर से जगह खाली रह जाती है. तो यहाँ एक खाली जगह है जो पीछे की ओर ट्रांसफ़र हो रही है जब इलेक्ट्रॉन किसी आगे की दिशा में बढ़ रहा है या मूव कर रहा है. उसी को वैकेंसी को ही हम होल्स कहते हैं. इसके बारे में हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल थर्ड वन इज इंसुलेटर्स. द मटीरियल विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी like glass or ebonite, there are no free charge carriers. There are no current carriers or free charge carriers. So no current. Right. In some other materials, like some other form of matter, that is in liquids. In liquids, generally, like for example NaCl solution. In NaCl solution, current carriers are Na plus ion, that is positively charged ion, and Cl minus ion, that is negative charged ion. So ions are actually the current carriers. Similarly in gases, and these are actually solutions are used in electrolytes. You must have heard about dry cell and wet cell. In wet cell we use electrolyte, means the solution which contains ions. जैसे एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ होता है ना, और अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज़ होता है. अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन एक सेल हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेक्लांचे सेल, जिसमें हम अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाएंगे जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा. तो ये सारी चीज़ें इसमें कंडक्टर्स का काम करती हैं. इसी तरह गैसेस जनरली तो नॉन कंडक्टर्स होती हैं, लेकिन अगर उसको आयनाइज कर दें, आयनाइज का मतलब एक टेम्परेचर बढ़ा के उसके एटम्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर दें, तब वहाँ पे ये आयनाइज्ड आयंस जो होते हैं वो मूव करते हैं. अब ये आयनाइज करने के लिए तरीका क्या अपनाते हैं, जैसे कोई गैसेज है उसके अंदर से अगर हम एक्सरे गुजार दें तो उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है और एटम्स आयनाइज हो जाते हैं. आयनाइज होते हैं तो आयंस फ्री होते हैं, आयंस फ्री होते हैं तो करंट कैरियर मिल जाते हैं. तो इस तरह गैसेस भी कंडक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिसिटी. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, which is very important topic. So what is electromotive force? The force which moves the electrons, simply. But in definition it is EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell or cell is in the open circuit. अब ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज़ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकती है. अगर आपको याद हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर एक सेल है, ठीक है, इस तरह की भी हो सकती है जो आपकी ड्राई सेल है, इस तरह की भी हो सकती है, एक सॉल्यूशन एक डिब्बे में भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें एक रॉड ये हो गई हमारी निगेटिव वाली, ठीक है ना, और ये हो गई हमारी पॉजिटिव वाली, यानी एक वेट सेल हो गई जिसमें एक ये सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भरा हुआ है.
इन दोनों केस में अभी अगर हम इसको अब इसका सिंबल आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि सेल ऐसे डिनोट करते हैं, ये होती है सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम सर्किट में जोड़ लें, करंट बहा दें, मान लीजिए हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, और इसके अंदर करंट बहने लगी, करंट ये इधर से ऐसे बह रही है, तो हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर लगाया तो हमने वोल्टेज नापा, और वोल्टेज ही क्या होता था हमारा, अगर आपने 10th में ध्यान से पढ़ा हो तो ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वहाँ हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात नहीं करते थे, क्योंकि ये तब का केस हम तब नापना शुरू करते हैं जब इसमें करंट फ्लो हो रहा हो। करंट फ्लो होते वक्त जब नापते हैं तो इसमें ये हम क्या नाप रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का अंतर, ठीक है। एक हायर पोटेंशियल पे होगा, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा, एक 0 पे हो सकता है, एक 5 वोल्ट पे हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन ये ईएमएफ क्या चीज़ है, जब हमारी ये सेल इस तरह रखी हुई है, इसमें कोई भी सर्किट नहीं जुड़ा है, कोई बल्ब नहीं जुड़ा है, कुछ नहीं है, तब अगर हम ये इस सर्किट में ऐसे करके, मान लीजिए मैंने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, ठीक है, इस तरह से सर्किट कंप्लीट किया। अब जब हमारी करंट इसके अंदर से चलते हुए ऐसे आती है, तो करंट जब यहाँ पहुँचती है तो हर सेल के अंदर उसके मटेरियल के कारण अपना कुछ खुद का छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अब देखिए, इस क्या ड्राई सेल में भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हर सेल में एक छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये कोई तार अंदर नहीं लगा है। रेजिस्टेंस का मतलब चार्ज के चलने में रुकावट होती है। तो ये सॉल्यूशन में एक छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जो यहाँ बाहर तो चार्ज करंट चल रही थी, लेकिन अंदर उसको छोटा सा रेजिस्टेंस फील होता है इस करंट को चलने में सेल के खुद के कारण। बाहर तो बल्ब है लगा है, वो अलग है, अंदर यानी जो इसका एक्चुअल फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड ये बल्ब को देता, अगर ये रेजिस्टेंस ना होता तो इसका, अगर मान लीजिए अंदर ये 10 वोल्ट शुरू में देता, अगर ये वाला रेजिस्टेंस ना हो रहा होता तो ये 10 वोल्ट दे रहा होता इसको, ठीक है। लेकिन चूंकि जैसे ही करंट चलना शुरू होती है वैसे ही ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। जब तक करंट नहीं चल रही है तब तक ये रेजिस्टेंस काम नहीं करता, रुकावट नहीं होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी अगर चल रही है तो पहियों के बीच में फ्रिक्शन तभी आता है जब गाड़ी चलती रहती है। जब रुकी हुई है तो पहियों और सड़क के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है, यानी जब मोशन स्टार्ट होता है तभी फ्रिक्शन स्टार्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे है, जब चार्ज कैरियर्स का मोशन स्टार्ट होता है तभी चार्ज कैरियर्स को फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोशन स्टार्ट होने के बाद रेजिस्टेंस अप्लाई होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर ना चल रहा होता या करंट ना चल रही होती तब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ना होता। यानी हम हर बार जब भी हम नापने के लिए वोल्टमीटर लगाएंगे, मान लीजिए हम बल्ब हटा के यहाँ वोल्टमीटर लगा दें, तब भी वोल्टमीटर से नापने के लिए करंट को तो चलना ही पड़ेगा। यानी वोल्टमीटर जब भी हम लगा के नापेंगे किसी सेल से, तो यहाँ पे हमें कुछ वोल्टेज कम फील होगा। जैसे 10 वोल्ट इसमें एक्चुअल में होना चाहिए था, तो हो सकता है 9 ही वोल्ट यहाँ पे फील हो रहा हो, यहाँ रीडिंग में दिखा रहा हो। तो 1 वोल्ट कहाँ चला गया? 1 वोल्ट यूटिलाइज हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टेंस के कारण जो सेल के अंदर का है। अब क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो नाप सकता है? वोल्टमीटर लगाएंगे, कितना भी अच्छा वोल्टमीटर लगा दें, उसके अंदर से जब तक करंट आके नहीं बहेगी तब तक यहाँ पे हम उससे नाप नहीं पाएंगे। तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि इसमें से जोड़ने पे बिना करंट के चले भी नापते। तो ऐसा डिवाइस होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि आखिर गैल्वेनोमीटर होता क्या है। इस गैल्वेनोमीटर की खासियत होती है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक सेल या किसी भी रीडिंग को लेने के लिए ये 0 करंट वैल्यू पर रीडिंग लेता है। 0 करंट, जब करंट 0 हो जाए सर्किट में। और ऑब्वियस है, जब करंट 0 हो जाएगी तो इसके अंदर से करंट नहीं फ्लो करेगा। और अगर गैल्वेनोमीटर रीडिंग बता रहा है 0 करंट के, इसका मतलब वो बिना करंट बहे रीडिंग बता रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस अप्लाई ही नहीं हुआ है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से क्या नापा जा सकता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी एक्चुअल सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी
इस ईएमएफ को एक नाम और कहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि इससे अब हम जैसे ही नापना शुरू करेंगे हर बार कुछ कम वोल्टेज नापेगा। तो ईएमएफ किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है। कब नापा जाता है? जब उसमें करंट ना फ्लो हो रही हो, और यही इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। अब ईएमएफ को एक तरीके से और भी समझा जा सकता है कि अगर ये सेल लगा हुआ है, ये सर्किट है, अगर हम इस सेल के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, निगेटिव वाले पोजीशन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से पूरा सर्किट में घूमते हुए यहाँ तक पहुँचा और सेल के अंदर भी क्रॉस किया। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, सेल के अंदर भी क्रॉस करके एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुँचा। यानी वन यूनिट चार्ज कैरियर व्हेन moves the whole circuit including the cell, then the total work done will be equals to electromotive force। यहाँ एक और ईएमएफ की डेफिनेशन आती है कि एक यूनिट चार्ज लें, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। तो यूनिट चार्ज कैरियर यानी एक कूलाम इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसको यहाँ से सर्किट के थ्रू पूरे सर्किट से पास करते हुए और फिर से उसी प्लेट तक पहुँचे, सेल को भी क्रॉस करते हुए। क्योंकि पिछली बार क्या था, सेल में रुकावट आ जा रही थी, लेकिन अगर ऐसा हो कोई केस कि सेल के थ्रू भी क्रॉस हो जाए और तब पूरा वर्क डन जो करना पड़ा इतना यहाँ से यहाँ तक चार्ज कैरियर को पहुँचाने में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो इसको हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a unit charge once round the complete circuit including cell, so it is the total work done। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन और निकलता है। मान लीजिए इस ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, चूंकि यहाँ पे चार्जेस हैं प्लस और माइनस चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। मान लीजिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में एक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में मान लीजिए पोर्शन ये जो स्मॉल पाथ सेगमेंट छोटा था, मान लीजिए एक छोटा सा पाथ सेगमेंट हमने इसमें ले लिया, दैट इज डीएल, एक छोटा पाथ सेगमेंट ले लिया। अब ये डीएल खूब सारे लेते हुए पूरा पाथ अगर कवर करना है और वर्क डन नापना है, तो हम ऐसे ही करते हैं। आपको याद हो, यूनिट चार्ज कैरियर है, आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है, F.D, लेकिन यहाँ फोर्स क्या है, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन याद होगा तो F इक्वल्स टू QE या E इक्वल्स टू F अपॉन Q, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। लेकिन यहाँ पे चार्ज कैरियर यूनिट है तो हम Q की जगह F की जगह E भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि F इक्वल्स टू QE, तो E इज इक्वल्स टू F बाई Q, लेकिन Q तो यूनिट चार्ज ले लिया तो यहाँ E यूज़ कर सकते हैं, तो E.D लिख सकते हैं अगर डिस्टेंस नापना है। तो वर्क डन ये होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के केस में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्मॉल ई से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं टोटल वर्क डन। यानी पहले तो एक वर्क डन निकालें, E.dl। ये E और F में कंफ्यूज मत होइएगा, ये F.dl होना चाहिए था, लेकिन F इक्वल्स टू ये F अपॉन Q ले रहे हैं और Q की वैल्यू यूनिट चार्ज यहाँ लिया है, इसलिए डायरेक्ट E लिख सकते हैं F की जगह। और पूरे सर्किट की बात करना है तो क्लोज्ड पाथ सर्किट, ये इंटीग्रल लगा दिया। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ईएमएफ के निकालने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ये। अब देखिए कुछ इसकी यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं।
देखिए ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। कैसे पता? यहाँ देखिए E इक्वल्स टू ये EMF इज इक्वल्स टू E डॉट DL, या फिर यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये यहाँ पे E जो है ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F/Q, जहाँ पे Q क्या था, 1 कूलम था या यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। इसको याद रखिएगा, मैंने Q को 1 सीधे लिख दिया था तब E लिखा था, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में। डॉट DL, अब देखिए F डॉट DL मिलके क्या बनाया, F डॉट D ये डिस्टेंस है तो ये हो गया वर्क डन, और नीचे क्या हो गया, चार्ज। तो जूल पर कूलम हो गया, जूल कूलम, और जब जूल पर कूलम हो गया तो ये क्या बन गया, वोल्ट। तो ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ईएमएफ जो है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। जो मैंने अभी आपको सेल बना के दिखाया था कि सेल में ये है 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, तो ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के हैं, जिंक के हैं, कॉपर के हैं, किसी और मटेरियल के हैं, कार्बन के हैं, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा, इस इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर लिक्विड भरा जाता है वेट सेल में, उस पर डिपेंड करता है, या ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है। देखिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए मैंने किसी पाउडर, मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड पाउडर यूज़ किया है, और मैंने इतना ज़्यादा, जनरली ये जो लेक्लांचे सेल होता है, एक लेक्लांचे सेल आप लैब में भी देखेंगे, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट में एक वाटर में, डिस्टिल वाटर में हम लोग अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl डाला करते हैं। NH4Cl डालने में हम पाउडर घोलते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब ये सैचुरेट कर जाता है, यानी उससे ज़्यादा पाउडर नहीं घोलता, तब तो इसका EMF कितना आता है, 1.4 वोल्ट। लेकिन अगर हमने कम पाउडर घोलना, जितना घोलना था उससे आधा ही घोला, मान लीजिए 200 ग्राम घोलना था, हमने 100 ग्राम ही घोला, तब इसका EMF 1.5 वोल्ट ना आके EMF आपका रीड करेगा मान लीजिए 0.8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर भी निर्भर किया, और इसी तरह मटेरियल टू मटेरियल भी वेरी करता है। जैसे लेक्लांचे सेल की जगह अगर हम डैनियल सेल यूज़ करते हैं, वहाँ ये जो डिब्बा है ये फाइबर का, प्लास्टिक का ना होके वहाँ कॉपर का डिब्बा यूज़ करते हैं, और उसी को हम यूज़ करते हैं एक उसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। और यहाँ पे हम कार्बन और जिंक लगाते हैं, वहाँ कॉपर और जिंक लगाते हैं, तो उससे उसका जो EMF हो जाता है वो 1 वोल्ट हो जाता है। जो एक ये वाली सेल जो है इसको हम नाम दे रहे हैं लेक्लांचे सेल होता है इसका नाम। इसी तरह डैनियल सेल होती है, ठीक है ना। तो सेल टू सेल EMF वैली करता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के टाइप बदल जाते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। दोनों ही सेल की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिक 1 बाय 1 समझते चलते हैं। पहली चीज़ तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये सोर्स होता है करंट का, यानी करंट कहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये उसको बताता है। लेकिन जो ये जो आपका क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये सर्किट के किसी भी पॉइंट पे 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना अंतर है पोटेंशियल का, उसकी वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तभी आएगा जब सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर बैटरी जुड़ी हो, यानी कोई सेल है उसमें EMF होता है, और उसी के बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप पाते हैं। अगर EMF ही नहीं होगा तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अभी हमने देखा था कि ये टोटल वर्क डन था किसका, एक पूरे कंप्लीट EMF जो था वो पूरे सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट चार्ज को मूव कराने में इंक्लूडिंग सेल जितना भी वर्क डन करना पड़ता है ये होता था EMF। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमने जो हमेशा से पढ़ा है कि एक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपको याद हो, हम जब कैपेसिटर यूज़ अभी पढ़ रहे थे तो हमने कैपेसिटर में यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से ऐसे बनाया था, और मैंने कहा था यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कह लीजिए V2 है ना, फिर यहाँ से यहाँ V3 है। यानी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता जा रहा है, 2 पॉइंट के बीच में यहाँ अलग है, यहाँ 2 पॉइंट के बीच में अलग है। लेकिन अगर इसको बाहर हमने सेल से जोड़ रखा है, ठीक है, सेल से जोड़ रखा है,
और अगर हम इस पूरे सर्किट को हटा दें तो ईएमएफ तो पोटेंशियल किसी सेल का वही रहने वाला है, यानी सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दिया जाए और इसके अंदर जितना ड्रॉप हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस उसको जोड़ दिया जाए तो टोटल क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा बैटरी का। तो ये हो गया। उसके बाद और क्या अंतर होता है, ये देखिए, ये सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम भी मैंने बता दिया, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ होती है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे ये एक सेल लिया, इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैं सिंबॉलिकली ऐसे वायर बता रहा हूँ, ऐसा कोई वायर होता नहीं है अंदर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्ट करना। अब बाहर आप बल्ब लगा दें, ठीक है, कोई एक और डिवाइस लगा दें, कोई कैपेसिटर लगा दें, है ना, इस तरह के कुछ भी आप अगर लगाते जाएं, ठीक है, तो कुछ भी आप अगर इस तरह का लगाते हैं तो बाहर ये सभी अपना अपना रेजिस्टिव प्रॉपर्टी यानी रेजिस्टेंस देते हैं, यानी बाहर सभी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब आपको पता है कि यहाँ से एक बार निकल गया वोल्टेज यानी करंट मूव करने लगा। अब इस पे क्या डिपेंड करेगा, ईएमएफ नहीं, बाहर वाले रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना भी हो, जितना इसका ईएमएफ है वो वही रहने वाला है। ये तभी ईएमएफ तभी नापा जाता है जब करंट ना बह रही हो, और अगर करंट नहीं बह रही है तो बाहर इसका रोल ख़त्म हो जाता है। और अगर करंट ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब हम नापते हैं तो हम पाते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं तब जब गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग देने लगे, यानी करंट इसमें से चलना बंद हो जाए। और तब के केस में यानी जब करंट ही नहीं चल रही है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का तो रोल ही खत्म हो गया। यानी किस पे केवल डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 0 रहेगा तभी हम इसको नापा करते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता ये। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता है, यहाँ V1 और V2 मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। यानी V1 और V2 यानी पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। किसके रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वेरी कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी आगे का टॉपिक्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।